today's session of Business Regulatory Framework. Friends, successfully we have completed the first chapter of Unit 3, Companies Act 2013, called Memorandum of Association. That is the first important public document for the formation of the company, for the registration of the company, for the incorporation of the company, for starting any company. And today, friends, we are going to discuss the second important document, which is also important for incorporation of the company, or we can say for the registration of the company, or for the commencement of the company, called Articles of Association. So today we are going to discuss in detail what are Articles of Association in today's session. So which type or what pattern of question they are asking from this particular chapter? So let us have today's question on the screen, that is define articles of association. We will try to understand what are articles of association, which contents are included in it. इसके अंदर किन चीजों का समावेश होता है, इसके अंदर क्या लिखा क्या जाता है, क्या दर्ज किया जाता है, what matters are included in this particular document. जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमने देखा था द कंटेंट्स आर द क्लॉज और 6 क्लॉज की चर्चा की थी हमने, वो होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? So let's have the introduction first. Articles of association are the rules and regulations for the internal management of the affairs of the company. It deals with the rights of the members of the company. They are framed within the purpose of carrying out the objects as set out in the memorandum of association. Articles of association के अंदर सर क्या क्या लिखा जाता है, सर कंटेंट क्या होता है इसके अंदर? What matters are included in Articles of Association? Sir, there are rules and regulations framed and kept in Articles of Association. For what purpose? Why rules are kept in this particular document? Sir, for internal management of the company. Whatever the transactions are done by the company, whatever the contracts, agreements are done by the company or by the directors on behalf of company, then what are the rules related with that particular contract agreement, which will help company for its internal management. आसान हो जाएगा काम अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रख दिए जाते हैं, तो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट आसान काम हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और हर एक मेंबर्स को अपने राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स ये सब क्लियरली पता होगा। और ये जो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर इट इज फ्रेम्ड specially framed for carrying out the object that are kept under the memorandum of association. Memorandum of association के अंदर हम जानते हैं सर 6 important clause होते हैं: name clause, register office clause, object clause, liability clause, capital clause and association clause. जिसमें से थर्ड नंबर यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के बेसिस पे ही, नॉर्मली यही हमारा बेस है, यही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, और यही बेस लेकर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फ्रेम किया जाता है कि कंपनी ने जो ऑब्जेक्ट अचीव करना है वो किस तरीके से स्मूथली अचीव कर सकते हैं सर, तो उस तरीके से रूल्स फ्रेम करने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो द बेस इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो फ्रेम किया जा रहा है उसका बेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर जो भी बातें लिखी गई है, जो भी कंटेंट ऐड किया गया है, उसके बेसिस पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है। सो द बेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का बेस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट रेडी होगा, उसके बाद इसके बेसिस पे रेडी होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो ये बड़े भैया है और ये इसके छोटे भाई है। द आर्टिकल्स आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर मेमोरेंडम, स्पष्ट बोल दिया है, सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला है मेमोरेंडम, which contains the fundamental conditions upon which a company is allowed to be incorporated. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। पहले मेमोरेंडम रेडी होगा, मेमोरेंडम रेडी होने के बाद आर्टिकल्स की प्रिपरेशन होगी, ये डॉक्यूमेंट रेडी किया जाएगा, और इन दोनों की मदद से कंपनी इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, इट कैन बी स्टार्टेड, इट कैन बी रजिस्टर्ड। The provisions, or we can say the rules of the articles, must not be inconsistent with any provision of the memorandum of association or the company's act. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो भी प्रोविजंस रखे जा रहे हैं आर्टिकल्स के अंदर, वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए मेमोरेंडम के साथ। मेमोरेंडम की जो प्रोविजंस है, वहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए, रखे गए,
उसके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, इन दोनों के बीच में तालमेल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेमोरेंडम के बेसिस पे ही आर्टिकल्स बनना चाहिए, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स के अंदर रखे गए शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द मेमोरेंडम। ना ही मेमोरेंडम के साथ इसकी इनकंसिस्टेंसी होनी चाहिए रूल्स की, ना ही कंपनीज एक्ट के साथ, कंपनी एक्ट के कोई प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तालमेल होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। तो बेस आर्टिकल्स का बेस जो है वो मेमोरेंडम से लिया जाएगा, साथ साथ में कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजन है उसको भी ध्यान में रख के आर्टिकल्स फ्रेम किए जाए। आप चलते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन। Articles has been defined as per section 2 subsection 5 of the Companies Act 2000। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सेक्शन अगर आपको याद हो सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 थी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 5। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है। सेम डेफिनेशन है जैसी ही हमने मेमोरेंडम की देखी थी, कोई वेरिएशन नहीं समझ लीजिए, सेम टू सेम डेफिनेशन, यानी एक डेफिनेशन याद करो दूसरी याद होगी। जैसे मेमोरेंडम होती है, जैसे मेमोरेंडम कंपनी की रचना करते वक्त बनाया जाता है, सेम वे आर्टिकल्स को भी कंपनी की रचना करते वक्त बनाया जाता है। ओरिजिनली फ्रेम्ड आर्टिकल्स मींस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, यानी जब कंपनी की स्थापना हुई थी, व्हेन द कंपनी वाज स्टार्टेड कमेंस्ड एस्टैब्लिश्ड, उस वक्त जो आर्टिकल्स बनाए गए थे वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। वैसे मेमोरेंडम में भी ऐसा ही था, सेम टू सेम, जिस वक्त कंपनी की स्थापना होती है मेमोरेंडम जो बनाए जाते हैं सेम वे आर्टिकल्स का भी वैसा ही है। जिस वक्त कंपनी की स्थापना होती है उस वक्त जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं उसको हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहेंगे, ओरिजिनली फ्रेम्ड। और इसमें अल्टरेशंस हो सकते हैं एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें हम चाहे तो अल्टरेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मेमोरेंडम के वेरियस क्लॉज में अल्टरेशंस हो सकते हैं। नेम क्लॉज के अंदर नेम बदलना हो तो हो सकता है, रजिस्टर ऑफिस का यानी कि ऑफिस एड्रेस बदलनी हो तो हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना हो तो हो सकता है, प्रोसीजर है उसकी, प्रोसीजर के हिसाब से अल्टरेशंस हो सकते हैं। सेम वे आर्टिकल्स के अंदर भी अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलने हैं, उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो उसमें भी अल्टरेशंस हो सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, डेवलप करती है, एक्सपांशन करती है, अपना काम बढ़ाती है, वैसे वैसे इनके मैटर्स चेंज हो सकते हैं। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में अल्टरेशंस करने हो आर्टिकल्स के अंदर वो 100% हो सकते हैं। तो ओरिजिनली फ्रेम्ड, जिस वक्त कंपनी की रचना हुई थी उस वक्त का जो कंपनी लॉ होगा उसके बेसिस पे जब आर्टिकल्स बनाया गया होगा वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। या आज के ज़माने अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज के ज़माने का जो एक्ट है ऑफ दिस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013, उसके बेसिस पे अगर आप आज की डेट में अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे आपने जो आर्टिकल्स बनाया है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो डेफिनेशन तो यूं ही कह रही है कि जिस वक्त कंपनी की स्थापना हुई थी उस वक्त जो आर्टिकल्स बनाया वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम। या समय के हिसाब से उसमें अगर आपने चेंजेस करने हैं, अल्टरेशन करना है, आप कर सकते हैं, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बस इतनी ही डेफिनेशन स्पष्टता कर रही है। डेफिनेशन में एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा रहा है कि इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, मैटर क्या होती है, ये नहीं कहा गया है। तो मेमोरेंडम में तो हमने देख लिया डिटेल में के अंदर क्या मैटर्स होती है, लेकिन आर्टिकल्स के अंदर क्या मैटर्स होती है वो अभी तक हमारे लिए सस्पेंस है, तो उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब्स व्हाट इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। The articles are subordinate to Memorandum of Association and are under full control of the members. Articles of Association can be altered at any time according to the wishes of the members. तो आर्टिकल्स जो है नॉर्मली ये इसीलिए फ्रेम किया जाता है कि भाई इंटरनल रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस या इंटरनल मैनेजमेंट जो कंपनी ने करना वो काम आसान हो जाए, और हर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता ही होता है। द आर्टिकल्स जो है ये सर ये इज अ सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने देख ही लिया कि मेन डॉक्यूमेंट जो है मेमोरेंडम है, और उसको सपोर्ट करता है सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट जो आर्टिकल्स है। ये इसलिए बनाया जाता है कि जो मेंबर्स रहेंगे वो अंडर कंट्रोल काम करेंगे, क्योंकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करेंगे। और आर्टिकल्स में भी हम अल्टरेशंस कर सकते हैं। मेंबर्स चाहते हैं कि भाई ये जो हमने रूल्स रखे हैं, ये पर्टिकुलर रूल जो रखा है इसको हमने चेंज करना है तो कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं।
लेकिन कंसेंट लेके होना चाहिए। अल्ट्रेशन, जब भी अल्ट्रेशन करना है कोई रूल के अंदर, तो मेंबर्स की परमिशन, मेंबर्स की कंसेंट लेके प्रॉपर ऑर्डर में प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके अल्ट्रेशन हो सकते हैं। जैसे रिसोल्यूशन पास करके होता है, तो वो रिसोल्यूशन पास करके वगैरह प्रोसेस करके ये अल्ट्रेशन किए जा सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द लिमिट्स एंड द फ्रेमवर्क बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट गो। एक हद बता देता है। मेमोरेंडम क्या है सर? एक लिमिट, एक एक स्कोप, एक एरिया बता देता है, और उस पर्टिकुलर लिमिट, उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, उस पर्टिकुलर स्कोप के बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती है। द कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स लिमिट। तो कंपनी की एक एक ज्यूरिसडिक्शन यहाँ मार्क हो जाती है, उसके ऊपर कंपनी नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाएगा। और अल्ट्रा वायरस जो एक्ट कंपनी ने अल्ट्रा वायरस एक्ट किया है, सच एक्ट इज वाइड, कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द शेयर होल्डर। सब में ये पड़ा हुआ है आगे, अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के अंदर कंपनी ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी, बियॉन्ड द लिमिट जाके कोई काम कर दिया, तो सर उसमें रेटिफिकेशन नहीं मिलता है, अनुमोदन नहीं मिलता है, कंसल्ट नहीं मिलता है, परमिशन नहीं मिलती है। तो कंपनी अपनी लिमिट, एक जो बाउंड्री है, एक लिमिट है, लिमिट के अंदर काम करना है, उसके ऊपर कंपनी भी नहीं जा सकती। कंपनी को अपनी हद कहाँ से पता चलेगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में से पता चलेगी, स्पेशली थ्रू ऑब्जेक्ट क्लॉज। Members can, within the framework, make their regulations through articles of association subject to the company। यही जो लिमिट रखी गई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, उसी लिमिट के अंदर रहकर आर्टिकल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने, ऑल्सो कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स? किस स्वरूप के आर्टिकल्स अवेलेबल है? रेडीमेड आर्टिकल्स भी अवेलेबल है। आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, पूरा फॉर्मेट दिखेगा, टेबल एफ का, टेबल जी का, टेबल एच का, टेबल आई का, टेबल जे का, ये सारे फॉर्मेट्स दिखेंगे आपको ऑनलाइन भी। अगर आप कभी सर्च करेंगे, यू विल गेट इट। हम यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि हमने कोई आर्टिकल्स यहाँ बनाने नहीं है, सिर्फ हमें समझना है कि कौन सा टेबल कौन सी कंपनी के लिए यूज होता है, किस प्रकार का टेबल, जो रेडीमेड टेबल अवेलेबल है फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स के, वो कौन सी कंपनी में कौन सा टेबल सिर्फ यूज होता है, हम सिर्फ हमारी जानकारी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखें। Forms of articles. As per Section 5 of Companies Act 2013, the following forms of articles shall be applicable in respect of various companies। जैसे हमने देखा था, टेबल ए से लेकर टेबल ई तक जो है मेमोरेंडम के रेडीमेड फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम अवेलेबल है, वैसे ही टेबल एफ से लेकर टेबल जे तक फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल, यानी 5 फॉर्म्स जो है मेमोरेंडम के, और 5 फॉर्म्स जो है आर्टिकल्स के। तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी, कोई कंपनी है, मान लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी ये टेबल्स फॉलो किए जाते हैं। कोई भी टेबल किसी भी कंपनी ने नहीं उठा लेना है, कंपनी का जो प्रकार है उसके बेसिस पे ये टेबल फॉलो करना है। ये रेडीमेड टेबल फॉलो किया जा सकता है, यहाँ कंपनी अपना खुद का एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुद का एक तैयार कर सकती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको चाहिए वो रख सकती है, उसमें कुछ एडिशन करना हो तो एडिशन भी हो सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर ये स्वरूप की कंपनी है, इस प्रकार की कंपनी है, तो उन्होंने कौन सा टेबल फॉलो करना है? टेबल एफ, शेड्यूल 1 का टेबल एफ फॉलो कर सकता है। इफ द कंपनी इज अ मिक्स पैटर्न ऑफ कंपनी, मींस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी है एंड इट इज हैविंग शेयर कैपिटल, अगर ये सिचुएशन है, इस टाइप की इस प्रकार की कंपनी है, तो वो फॉलो करेगी टेबल जी। देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सिर्फ गारंटेड कंपनी, तो उस सिचुएशन में सर टेबल एच फॉलो करना है। यहाँ तक जो हमने चर्चा की उसमें ये कैसी कंपनी है? इट इज लिमिटेड कंपनी। और बाकी के दो में अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो वो टेबल आई फॉलो करेगी, शेड्यूल 1 का। और अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वो कंपनी जो है सर वो टेबल जे फॉलो करेगी। और इस तरीके से टेबल फिक्स किए गए, कौन से टेबल कौन सी कंपनी किस प्रकार की कंपनी फॉलो करेगी। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछा जाए, एक्सप्लेन टेबल एफ, तो आपको समझ में आना चाहिए सर टेबल एफ क्या है, पता होना चाहिए टेबल एफ का रिलेशन किसके साथ है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ है।
और इसमें ये टेबल एफ जो है सर, ये किस प्रकार की कंपनी यूज करती है सर? द कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स आर सपोज टू फॉलो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1। इस तरीके से आपको लिखना होगा शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो, इसलिए ये फॉर्म्स थोड़ा माइंड में रखिएगा। टेबल एफ करके शॉर्ट क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी गया है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। A company may adopt all or any of the regulations contained in the model articles applicable to such companies। तो ये जो टेबल एफ मान लीजिए, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर टेबल एफ फॉलो कर रही है तो ये क्या कर सकती है? कंपनी में अडॉप्ट ऑल, इसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए सारे के सारे अडॉप्ट कर सकती है, पूरे के पूरे अडॉप्ट कर सकती है, या इनमें से जो इनको काम के हो वो अडॉप्ट करेगी। और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेंट इन द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनी, या इसमें से जो उनको चाहिए उतने रखेंगी, जो काम के नहीं लग रहे हैं उसको रिमूव कर देगी, लाइक दैट। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। आर्टिकल्स के अंदर के कंटेंट क्या होता है, इसके अंदर कौन से मैटर्स होते हैं जो दर्ज किए जाते हैं, रखे जाते हैं। सो नाउ लेट अस कम टू द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो व्हाट आर द मैटर्स दैट आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? Articles of association of a company contain rules and regulations for the internal management of the company। ये तो हमारी बेसिक लाइन है, मीनिंग है इसका। As per Section 5 of the Companies Act 2013, company may include additional matters in its articles as may be considered necessary for the management। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी फ्रेम कर रही है, रख रही है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, उसका एक ही उद्देश्य है, फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का संचालन करने के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ये कंपनी रूल्स फ्रेम करती है एज पर सेक्शन 5 सेक्शन 5 के हिसाब से। तो देखते हैं कंटेंट क्या है। Articles of association of the company usually contains rules and regulations relating to the following matters। अब जो भी मैटर्स हम देख रहे हैं उनसे जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। So the rules and regulations relating to share capital are included in articles of association, that is shares and their values and their divisions into equity and preference shares if any। तो शेयर कैपिटल से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हम देख सकते हैं आर्टिकल्स के अंदर। उसके बाद राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स एंड प्रोसीजर फॉर वेरिएशन ऑफ देयर राइट्स। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स की डिटेल्स भी इसके अंदर हमें मिल जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है रिलेटेड विद राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। वैसे ही सर प्रोसीजर रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स भी हम देख सकते हैं, ये भी रखे जाते हैं, रूल्स रिलेटेड विद द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स अलॉटमेंट की जो प्रोसीजर फॉलो करनी है वो भी होगी अंदर। कॉल्स एंड फॉर फ्यूचर की जो प्रोसीजर होगी वो भी दर्ज की होगी, वो भी रखी हुई होगी आर्टिकल्स के अंदर की कंपनी कैसे प्रोसेस करने वाली है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे करने वाली, कॉल्स ऑफ शेयर्स कैसे फॉलो करने वाली, फॉर फ्यूचर अगर शेयर्स के करनी है तो कैसे करने वाली है। देन लियन ऑफ द कंपनी ऑन शेयर्स, लियन ऑन शेयर्स की प्रोसीजर कैसे होगी, लियन ऑफ द कंपनी ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू द मेंबर्स फॉर द अमाउंट अनपेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स एंड द प्रोसीजर। तो लियन ऑन शेयर्स की भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी, जो प्रोसेस होगी, वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगी। यानी यहाँ तक हमने जो भी चर्चा की है ना दोस्तों, वो सब शेयर से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल आया, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर आ गए, अलॉटमेंट हो गया, कॉल्स एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर हो गया, लियन ऑन शेयर हो गया। शेयर से जुड़ी हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं अभी हम। आगे और भी शेयर से जुड़ी हुई बातें होगी। रूल्स रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ शेयर्स हो सकता है, रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो सकता है, रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो सकता है। इनकी भी प्रोसीजर की मैटर्स इसके अंदर दर्ज की होगी। वैसे ही शेयर को कन्वर्ट करना हो तो प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, या उल्टा हो सकता है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स। इसकी भी प्रोसीजर की डिटेल इसके अंदर रखी हुई होगी, उनसे जुड़े हुए रूल्स रखे हुए होंगे। वैसे ही और क्या प्रोसीजर है रिलेटेड विद शेयर्स, प्रोसीजर फॉर इशूइंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स एंड शेयर वारंट्स। शेयर सर्टिफिकेट्स या शेयर वारंट्स इशू करने होंगे तो उसकी भी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, ये भी अंदर रखा हुआ होगा। तो अब तक हम जो भी चर्चा कर रहे हैं शेयर से ही जुड़े हुए हैं, यानी शेयर सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है कंपनी के लिए। इंक्रीजिंग, अल्ट्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, आपने इसमें से पढ़ा भी है। कैपिटल रिडक्शन आपने अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ा भी है, कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल का रिडक्शन करना हो
कैपिटल को इंक्रीज करना हो, कैपिटल के अंदर कोई अल्ट्रेशंस करने हो, तो वो कैसे हो सकता है, उसकी प्रोसेस क्या होगी। तो यहाँ तक अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, हमने क्या देखा सर, शेयर से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन। अब आ रहे हैं डिबेंचर्स, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। शेयर्स के बाद अब आ रहा है डिबेंचर, डिबेंचर से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हो सकते हैं। रूल्स रिलेटिंग टू द नोटिस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग बुलवानी है तो नोटिस से जुड़े हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे फ्रेम किए होंगे। रूल्स रिलेटिंग टू वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, प्रॉक्सीज, पोल्स एक्सेट्रा, ये सारे मैटर्स भी इसके अंदर होंगे। तो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट जो है, फर्स्ट 8 पॉइंट जो है शेयर से जुड़े हुए। बायबैक ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की बातें, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक की बातें, शेयर सर्टिफिकेट या शेयर वारंट इशू करने की प्रोसीजर क्या है, कैपिटल में अल्ट्रेशन करना हो, वेरिएशन करना हो, इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, तो उसकी बातें, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनकी प्रोसीजर होगी। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स की बातें होगी। नोटिस ऑफ मीटिंग की रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी। प्रॉक्सी, पोल्स एंड अदर मैटर्स होंगे। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है सर, अब बात बात आ रही है कि कंपनी को जो चलाने वाला बंदा है, द ऑफिशियल पर्सन हु रन्स द कंपनी आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। आई रिपीट वंस अगेन, द ऑफिशियल पर्सन हु रन्स द कंपनी, हु फंक्शंस द कंपनी इज कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स की भी बातें होगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आप जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखेंगे तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, ये भी, इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेलिंग की जाती है। हम यहाँ पे सिर्फ इनके मेन कंटेंट्स देख रहे हैं। अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशन, पावर्स, ड्यूटीज, ये सारी बातें किससे जुड़ी हुई दिखेगी, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कब होगी, ये सारी चीजें होगी अंदर, कितने डायरेक्टर्स होंगे, वगैरह वगैरह। रेम्यूनरेशन क्या होगा डायरेक्टर का, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए डायरेक्टर्स की, पावर्स क्या देने वाले हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स की ड्यूटी क्या होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर दर्ज की जानी चाहिए। डायरेक्टर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, दोनों जो भी कंपनी को चलाने वाले बंदे हैं उनकी डिटेलिंग यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद आती है बात बोरोइंग पावर्स की। बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी एंड द मोड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर्स। कंपनी कितना फंड बोरो कर सकती है, कितना लोन ले सकती है बाजार में से, मार्केट में से, वो और किस स्वरूप में ले सकती है, ये सारी बातें भी होगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, सोशल रिस्पॉन्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। तो यहाँ वेरियस कमिटीज की बात हो रही है। अलग अलग स्वरूप की कमिटी होनी चाहिए, ऑडिट कमिटी होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन कमिटी होनी चाहिए, सीएसआर कमिटी होनी चाहिए। तो इन सब कमिटियों की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रेम किए जा रहे हैं उसका ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन होगी कि ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स करवाने, कब करवाने, कैसे करवाने, उसकी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अंदर दर्ज किए जाते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स एंड ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू रिजर्व्स। डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, और कितनी रकम एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितनी रकम रिजर्व्स में रखनी है, कुछ परसेंटेज होते हैं, वो परसेंटेज कंपलसरी रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करने होते हैं। मान लीजिए 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से कंपनीज एक्ट में बोला गया हो कि भाई 20% जो है आपने रिजर्व्स में रखने हैं, तो 100 में से 20 रुपये जो है आपने कंपलसरी लीगल रिजर्व, या कह सकते हैं स्टेचुटरी रिजर्व में ट्रांसफर करने होते हैं। तो वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स के अंदर रखे गए हैं, यहाँ कंपनीज एक्ट में जो है उसके हिसाब से आर्टिकल्स में रखे गए हैं, उनके प्रोविजन के हिसाब से रखे गए हैं, तो वो फॉलो करना है। डिविडेंड कब डिक्लेयर करना है, कितना डिक्लेयर करना है, वो भी बेसिस भी दिए होंगे, कितने परसेंटेज तक डिक्लेयर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। प्रोविजन रिगार्डिंग कॉमन सील, कंपनी के कॉमन सील होते हैं, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। कंपनी जो भी कॉमन सील यूज कर रही है तो उसकी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि कब कॉमन सील यूज करना है, कैसे यूज करना है, और यूज कौन कर सकता है, ये सारी क्लियरिटी होनी चाहिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट मिला है क्या उसका कैपिटलाइजेशन किया जा सकता है, कैन प्रॉफिट बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल फंड्स और कैपिटल रिजर्व, तो उसकी राइट्स क्या है, प्रोविजन क्या है, वो क्लियर होनी चाहिए। और अंत में अगर कंपनी को क्लोज करना है, वाइंड अप करना है, तो उसकी भी प्रोसीजर होनी चाहिए, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियरली मेंशन होने चाहिए कि कंपनी को अगर वाइंड अप करना है, मींस क्लोज करना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, वो क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 19 कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखे हैं। अब चलते हैं इसके एंड पार्ट पे, कंक्लूजन पार्ट पे। कंक्लूजन कभी भी हेडिंग नहीं देना है,
इस तरीके से पैराग्राफ स्वरूप में आप लिख सकते हैं, बट नेवर गिव द हेडिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन की हेडिंग कभी नहीं देनी है, खास ध्यान रखिएगा। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है कि आप उसको लास्ट में कंक्लूड करेंगे। ये कोई प्रयोग नहीं है कि लास्ट में आप कहेंगे हाँ भाई इस तरीके से करेंगे तो ऐसा होगा। The articles of association must be framed carefully and it should contain rules in regard to all such matters which are required to be contained therein and which are essential for the smooth functioning of the company. आर्टिकल्स के अंदर हर एक चीज का समावेश हो जाना चाहिए, हर एक नियम का समावेश हो जाना चाहिए। अगर कोई रह भी जाता है तो बाद में ऐड किया जा सकता है। आर्टिकल्स के अंदर भी अल्टरेशंस किए जा सकते हैं। कोई रूल्स के अंदर चेंज करना हो तो हो सकता है, कोई रूल्स ऐड करना हो तो हो सकता है, कोई रूल्स निकालना हो तो निकाला जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो एडिशन, डिलीशन एंड अल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज पॉसिबल by following the proper procedure of alteration. It should be remembered that the articles must not contain anything which is against the provision of the Companies Act or Memorandum. यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आर्टिकल्स के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम एक्ट। तो आर्टिकल्स के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं, इट शुड बी सबऑर्डिनेट, इट शुड बी फॉलोड और इट शुड बी कोप अप विद मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट। इसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, इसकी फेवर में होना चाहिए, इसके साथ साथ चलना है, सबॉर्डिनेट होके चलना है। इसके अगेंस्ट या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स में नहीं रखने। कैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगेंस्ट कब माना जाएगा, तो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल्स मस्ट नॉट कंटेन अ रूल परमिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। ये परमिशन कभी नहीं दे सकता आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को ये परमिशन देने की परमिशन नहीं है। आर्टिकल में ऐसा रूल्स ही नहीं रख सकते हम। आर्टिकल्स मस्ट नॉट कंटेन अ रूल परमिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड, डिविडेंड कैन ओनली बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। कैपिटल में से डिविडेंड दोगे तो आपका कैपिटल कम होता जाएगा। कंपनी का मान लीजिए 20 लाख का कैपिटल है और प्रॉफिट मान लीजिए 0 है, प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल, और फिर भी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, कैपिटल में से डिक्लेयर करने की बात करता है, और डिविडेंड देने की लायबिलिटी 4 लाख रुपए हो जाती है, तो कहाँ से देगा? कैपिटल में से देगा। तो 20 लाख का कैपिटल 16 लाख हो जाएगा, तो बिजनेस क्या करेगा? इसलिए the dividend cannot be declared out of capital, dividend can only be paid from profit। अगर आर्टिकल्स में ऐसा रूल रखा जाए कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल बी मेड फ्रॉम कैपिटल, तो वो रूल गलत होगा। इट इज वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की कोई भी प्रोविजन के अगेंस्ट में कोई भी आर्टिकल्स के अंदर रूल्स नहीं रख सकते। कंपनी एक्ट के अंदर जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो कर